हेलो स्टूडेंट्स। आज एक छोटी सी बात करते हैं। एट दिस सेशन दिस वीडियो विल बी ऑन हिंदी एंड इंग्लिश because this was the matter I would like to share with you. That's a one day I was asked by someone that what is personality development, and how personality development is different from Vyaktitva Vikas. So my answer was like this, that personality development is, according to modern generation, they understand that so personality development is speaking good English, branded clothes, branded, all things are branded, right? And table manners, uh, Mexican food, Italian food, Chinese food, something like this. That is personality development. Whereas Vyaktitva Vikas is, जहाँ व्यक्तित्व विकास की बात आती है, वो गहराई मुझे समझ में आई कि जो व्यक्तित्व विकास है उसका मतलब है कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है, आपके अंदर कितनी गहराई है। कपड़ों से उसका लेना देना नहीं है, और व्यक्तित्व विकास है तो अंग्रेजी से भी बहुत लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक एक ऐसा विकास, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जो आपके तन को तो अच्छा करे। नेचुरली आप फिट हो, आप ध्यान करते हो, आप घूमने जाते हो, आपकी बॉडी एकदम, मतलब क्या चुस्त दुरुस्त हो, और साथ में आप दिमागी तौर पे बहुत संतुलित हो, वो व्यक्तित्व विकास है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट डज नॉट मीन्स all these kind of traits which should be developed. Of course, that should be developed, that is complete personality. But usually personality development is defined, or is what we can say, that understood, that that's a something more to do with language, English language fluency, flawless English, or as I told you, that good clothes, right? Handsome personality, eating habits, this way. Now, as a teacher, I would like to tell you that how can we how can we develop or groom our personality. So first of all, what I understood at this age, I understood that what's a life. This I am senior lady, and now I understood that what's a life. My dear students, life is actually very short. It is ephemeral. It is short-lived. जिसको हिंदी में कहा गया कि पानी का बुलबुला है, सचमुच बुलबुला है। न सोचने का टाइम है, देयर इज़ नो टाइम फॉर पॉज, देयर नो टाइम for thinking, right? And that's why we have to sit for meditation. नहीं तो पहले तो हम, लाइफ स्लो थी तो कहीं हम मेडिटेट करते रहते थे, कभी हमारा ध्यान अपने ऊपर भी जाता था। लेकिन आज जो मुझे पूरा समझ में आ रहा है इस एज में आने के बाद, कि लाइफ है क्या, तो लाइफ इतनी जल्दी निकलती है स्टूडेंट्स। और लाइफ में सबसे बड़ा जो आप सबको, मुझे, हम सबको करना है, वो सबसे बड़ी चीज़ वो है अचीवमेंट्स। पहले तो मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ कि हम सब अचीव करना चाहते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ, लेकिन अचीवमेंट जो है वो
मल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब आप अपने करियर को अच्छा करियर बनाने के लिए एफर्ट्स करिए, तो उसमें सबसे ऊपर आता है नॉलेज। और नॉलेज गेन करने के लिए डोंट गो विद व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड गैजेट्स। इट्स नॉट suffice, it's not sufficient. Hard copy. Why hard copy? Why uh, I prefer hard copy than soft copy? Reason is that because you will be focused, more focused. I used to suggest to my students that read newspaper, and newspaper is known as black and white. It's a best, and it is the most authentic document. And that is why if you read something from newspaper, and when you refer or share any information from newspaper, so you will be listen more and you are more authentic. If you give example uh, of a video, social media videos especially, that are not reliable, that is morphed, that is doctored video might be. So it's my request, actually today I'm making this video for those who are netizens. We all are netizens, but those who are wasting their time, money, energy for others, first request, otherwise I forget. So let me complete this point, that first of all, my dear students, please don't waste your time, money, energy for others. Don't waste your time watching reels, videos which are unproductive or sometimes productive. But we have to set the priority. What's our priority? And our priority is our knowledge, because knowledge is a vast subject. So what is required for your future? What is required? First of all, whatever you're studying, you're reading, you're doing, which kind of program you have taken admission, BA, BCom, BSc, engineering, whatever, medical. But thing is that whatever you're doing, you should be focused on it. आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई सबसे पहले, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको, सिलेबस को आपके कॉलेज वाले करवाएं नहीं करवाएं, डोंट गो विद ब्रिलियंट और 20 क्वेश्चन, और बिल्कुल नहीं, ये बड़ा इंजूरियस, ये बड़ा, आप अपने आप को ही एक तरह से, इन अदर वर्ड्स, आप अपने आप को किल कर रहे हैं या आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। आपके पास सबसे अच्छा है वो है ये डिवाइस, मोबाइल फ़ोन। और अब आपको कहीं नहीं जाना, दिस इज़ अ मेंटर, दिस इज़ अ फैसिलिटेटर, राइट। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम इस मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास, आप ये समझ लो कि ये बून है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आज आपके पास मोबाइल है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, वर्ल्ड में सब कुछ देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने वीडियोस देखो, आपके यूज़फुल वीडियोस देखो जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है। सिलेबस सामने रखो, हार्ड कॉपी सामने रखो, और एक के बाद एक, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, कॉलेज में कितना पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कितना पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद 1 बाय 1 उससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखो, उससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ लो, भले एक बार पढ़ो, आप ब्रेन भी मत यूज़ करो, पर आप एक बार उसको पढ़ो। जब आप उसको अपने उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोर लगे या आपको नहीं पढ़ने का मन हो, देखने का, फिर भी देखो। कहते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था कि भाई जब शुरू में हो सकता है आपका तन ना लगे, मन ना लगे, तो तन लगाओ, मन नहीं लगता कोई, फिजिकली बैठे रहो, पूरा वीडियो देखना ही है, पूरा टेक्स्ट पढ़ना ही है। सेकंड टाइम जब आप बैठोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ये ह्यूमन नेचर है। और थर्ड टाइम जब आप
फिर से देखोगे वो वीडियो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और यहाँ से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। आपके 1 या 2 टॉपिक में भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप ये समझ लो कि धीरे धीरे आपने 20% सिलेबस किया, फिर 30% किया, और अगर आप 50% सिलेबस भी अपना बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आधा सिलेबस, तो ये समझ लो कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया। तो ये आपको करना है। आपको क्लास में क्या आएगा, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स, आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, वो से कोई मतलब नहीं है। आप तो सबसे पहले अपना जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके टॉपिक्स, उसके वो अपनी एफर्ट, सेल्फ एफर्ट आप तो देख ही लो, उससे रिलेटेड वीडियोस। और अगर वही कोर्स वही टॉपिक क्लास में चल रहा है तो आप अगर वीडियोस और टेक्स्ट पढ़ के जाओगे तो नेचुरली आप क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉरी अपने फैकल्टी से पूछ पाओगे। तो ये सबसे बड़ा, हमने शायद ये सब नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जनरेशन, नई वाली जनरेशन को, जो मैंने फील किया, जो मैं एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो मैं शेयर करूँ। और मैं ये सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू your syllabus. Each and every topic should be covered, and phone everything is available, so go with the video, text, right? And sometime very useful and productive slideshows are there, so you just watch it and make your notes, keep diary with you, and whatever is important, because manual writing is always very important. So whatever you have learned, just write it down, and then after 1 week or 15 days you can revise whatever you have written. So that's a very good practice, students. This way you improve a lot, right? First thing. Second thing, every day, as I in the beginning I told you that I would suggest you hard copy of everything, hard copy of novel, the study material, and especially newspaper. If you are updated, means 50% the fight you have won. ज़िंदगी में आपको अभी इतने सारे इंटरव्यूज़ देना है, इतना कुछ करना है। इवन इस एज में मुझे भी इंटरव्यू देना है, इन अदर वे, अदर सेंस। कैसे कि हमें भी रोज़ प्रूफ करना है। जब तक हम जॉब में हैं, एवरी डे वी हैव टू प्रूफ, है ना? तो जब हमको प्रूफ करना है, मतलब अपडेटेड होना है। और इफ़ आई एम अपडेटेड, इफ़ आई एम नॉलेजेबल, दैट इज़ पावर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर से बहुत सीखा, एंड आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट न्यूज़पेपर रीडिंग, बट आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट जस्ट नाउ। और हार्ड कॉपी में क्यों आई वुड लाइक टू प्रेफर, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना ट्री, यू आर वेस्टिंग जस्ट ट्री, बिकॉज पेपर इज मेड विद मेड by trees, and that's why you should not waste paper. I said I'm not wasting paper because sometimes I am not able to open even folds, but then we waste many things in we waste uh, phone when I am passing my time with the reel and all, so that I am wasting electricity because I have to charge my phone. तो वो भी तो वेस्ट है। तो इसमें 1 दिन 2 दिन अगर पेपर के फोल्ड्स ओपन नहीं होते, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट बाय हार्ड कॉपी, बिकॉज हार्ड कॉपी मीन्स आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप सिर्फ न्यूज़पेपर के साथ हो। और एज यू रीड समथिंग फ्रॉम मोबाइल, सो यू डेफिनेटली वुड चेक योर, बीच बीच में आपके मैसेजेस आ रहे हैं, रील्स देखने लगे आप, कुछ भी, बहुत डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल में। तो इट इज़ बेटर टू रीड हार्ड कॉपी, है ना? एक तो ये बात। दूसरी तो मैंने अभी आपको 2 चीज़ सजेस्ट करी। एक तो अपना कोर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स है उसको अच्छे से कॉन्क्रीट उसको समझो और उसका नॉलेज लो। नंबर 2, आपका जीके, और जीके इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, और एक न्यूज़ बुलेटिन टीवी में रोज़ देखो कि आज क्या हुआ दिन भर में, राइट? तो कम से कम एक न्यूज़ तो देखना ही चाहिए, एक बुलेटिन आपको देखना चाहिए। और आई वुड प्रेफर टू वॉच 1 हिंदी न्यूज़ बुलेटिन एंड 1 इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन। और आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ एनडीटीवी का इंग्लिश इज़ द बेस्ट इंग्लिश, so I would prefer the same, just watch 1 news bulletin
in any TV, right? And try to understand. If you listen something new, if you find some new words, new vocabulary, note it down, right? And by the time in the beginning, it is quite possible that in the beginning you are not interested and it seems it's boring or something, but as you continue, then 15 days, within an hour, you'll be able to understand politics and other things, and that is good for you because it would increase your knowledge, right? So that's the second thing. Third thing, for personality, what to do for personality, as I told you, that do meditation, go for walk, or exercise, right? It should be the part of our life. हम सबको करना, छोटा आपका मन नहीं लगे वहाँ पर भी तो आप क्या करो कि आप सिर्फ बैठ जाओ कि ठीक है आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही एक्सरसाइज करने की, चलो ठीक है अभी बैठ के 5 मिनट कर लेते हैं, प्राणायाम ही कर लेते हैं। आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ करके ही उठोगे। तो जस्ट अपने मन को समझाओ, अपने मन को एंटरटेन मत करो। जब आपका मन आपके ऊपर रूल करने लगता है तो आपको नो, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू, आई हैव टू सिट, मुझे तो उठना ही है, मुझे कोई नो एक्सक्यूज़, मुझे उठना ही है, मुझे आज ये काम करना ही है। तो उस तरह से जब आप करोगे तो आपके रूटीन में धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने साथ सेल्फ डिसिप्लिन, आप अपने साथ स्ट्रिक्ट रहो कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू, आई हैव टू सिट, आई हैव टू डू एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। तो मॉर्निंग से आपके पास बहुत सारा एजेंडा होगा दिन भर करने के लिए। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मैंने ये न्यूज़ देखी। और सबसे बड़ी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग रील्स में और दूसरों के यूट्यूब्स में अपना टाइम, मनी, एनर्जी मत वेस्ट करो, क्योंकि वो आप उनके रील्स, हो सकता है कुछ रील्स बहुत अच्छे भी होते हो, लेकिन हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है ये सेट करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या इतना टाइम है जो हम अपनी आंखें थका रहे हैं, हमारा मन इतना बार बार डाइवर्ट हो रहा है, और साथ में हमारी एनर्जी जो कभी लाइफ में वापस नहीं आएगी। एनर्जी लेवल हर एज में अलग अलग होता है। आप 30 तक जितना गेन कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम के बाद तो एनर्जी लेवल कम होना है, और नहीं भी होना है तो जैसे जैसे आप ग्रोइंग एज में जाओगे तो दैन यू विल बी फिक्स समवेयर, बिकॉज यू हैव commitment, responsibility, because everything is in time, you know। अगर आप टाइम पे सेटल नहीं हुए तब भी प्रॉब्लम है। तो आपकी मैरिज होगी, बच्चे होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, एंड यू विल बी फिक्स इन अ प्लेस, और वहाँ पे जाके आप चाहते हो भी बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो कुछ करना है अभी यंग एज में करना है, यही टाइम है, इसको कितना यूज़ कर सकते हो। आपके मन में पूरे टाइम ये फील आना चाहिए कि नहीं आई एम वेस्टिंग माई टाइम, फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। दूसरी बात कि जब आप रील देखते हो तो आपको ये गिल्ट फील होते रहना चाहिए कि एक तो मैं अपना टाइम ये रील को दे रहा हूँ और उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उसका टाइम बढ़ रहा है, वो मनी अर्न कर रहा है, और मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ या बन रही हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। एंड देन फोर्थ थिंग इज़ दैट एट लास्ट, जब आप सोते हो शाम को या जब भी रात को जब आप सोते हो, तो सोने का, ये मैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का सजेशन आपको दे रही हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर आप 10 बजे सोने का प्लान करते हो तो सो ही जाना चाहिए 10 बजे तक। और 10 बजे सोने का मतलब 9 बजे से लाइट्स ऑफ हो जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक आपको जो भी आपके मोबाइल में और गैजेट्स में काम करना है कोशिश करो कि वाइंड अप हो जाए, क्योंकि वो तो फिर 2 बजे रात तक भी करोगे तो वाइंड अप नहीं। तो ये डिसिप्लिन वाली बात आती है यहाँ पर। तो आपने यू जस्ट हैव टू सेट योर टाइम, नो 9:30 आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू शिट क्लोज माई वर्क, एंड दैट्स वाई। तो देन यू शुड क्रिएट एटमॉस्फेयर एट होम। क्या आके खाना खा लिया, इवनिंग में खाना खा लिया, 2 घंटे के पहले, सोने के पहले आपने खाना खाया, रात को सोने के पहले आप दूध पीजिए, और साथ में फिर जब आप सोने लगे तो सोने के टाइम मोबाइल आपका ऑफ और बंद होके आप कहीं दूर रखिए मोबाइल को। चेक नहीं करना, ये सोच के मत चेक करना कि आप अलार्म घड़ी लेकर आओ भले, लेकिन आप ये सोच के कि नहीं मैं आई एम नॉट गोइंग टू चेक माई मोबाइल, कुछ भी नहीं होगा उससे। ये एक एंजाइटी है, एडिक्शन है, और ये समवॉट इट्स अ मैडनेस,
समझ में आया? तो मत करिए, क्योंकि उस नहीं करोगे, 4 दिन नहीं करोगे तो आपकी गैजेट फास्टिंग की आदत हो जाएगी कि नहीं, गैजेट फास्टिंग, आई एम फास्टिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माई फोन अगैन एंड अगैन। तो रात को दिस अ स्लीपिंग टाइम, मॉर्निंग आई विल सी, right? So just keep your mobile somewhere, like from at a distance and sleep, है ना? तो डिस्टेंस में रख कर सोइए, कबर्ड में रखिए, कुछ भी करिए। एक बात, लास्ट में जब आप सोने के पहले अगर तो अच्छी कोई बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग या भजन सुनिए, और एक छोटी सी मॉरल स्टोरी पढ़ के सो। अच्छी सी कोई देख भी सकते हो आप, अच्छा वीडियो देख लो, तो आप एक छोटी सी कोई मॉरल स्टोरी पढ़ के या देख कर सो। और उसको कहते हैं, ये भी मैं शिवानी, ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी का एग्जाम्पल दे रही, कि वो कहते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रात भर रहता है। तो हम अच्छा वीडियो या अच्छा भजन सुन के सोते हैं, तो और भगवान के पास हमेशा पैर पड़कर उनका आशीर्वाद लेकर ही सो, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर सो, उनके पैर पड़कर सो। आप देखना कि आपके एक दिन धीरे 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 पर्सनालिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आपको वो जो कहानी है जिसमें आपको कोई मॉरल, कोई लेसन मिलता है, बिल्कुल 3-4 मिनट की स्टोरीज भी हैं मोबाइल में, तो आप उसको पढ़ के या सुन के सोते हो, सवेरे आपके पास एक अलग तरह का थॉट रहेगा और आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। और मॉर्निंग में भी जब आप उठते हो तो आप बिल्कुल मोबाइल में बैठना ही नहीं है, आपको अच्छे भजन सुनना है, आपको अच्छे गीत सुनना है, या आपको उठते से ही कुछ ना कुछ ध्यान, 1 मिनट का ध्यान बिस्तर में बैठ के करना है। उसके बाद फिर अब आप बहुत पॉजिटिव काम करो, और एजेंडा होना पाए चाहिए। बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं लास्ट में आपसे यही बोलूँगी कि हमारे पास मॉर्निंग में रोज़ एक एजेंडा होना चाहिए कि आज मुझे इतना काम है, मुझे अपना ये टॉपिक कवर करना है, मुझे न्यूज़ देखना है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे अच्छा हाँ, एक बात और, हमेशा अपना एक शौक़ रखो। कैसा? यू हैव टू हैव वन हॉबी इन विच, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू समथिंग, यू शुड डेवलप एक्स्ट्रा समथिंग, फॉर एग्जाम्पल drawing, painting, singing, dancing, writing, whatever. But then you have to put your energy for one art, because you know that art is very important and it's a different kind of personality. If you write something, if you sing something, if you do painting, if you are singer, if you are dancer, so then whenever you go for interview, then definitely you can show, and then show that, sir, I have written poetry, or I am a good poet, or I am a good dancer, I am a good singer, whatever. So that proof, because if you are interested, if you are working on it, so you will participate, and you should participate outside also. A number of activities are अरेंज इन आर सिटी, इन आर सराउंडिंग, सो गो फॉर इट। आपके आसपास देखो, गणेश उत्सव, ये वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, करो। और चलो नहीं भी कर रहे हो तो उसके वीडियोस बना लो। आप अच्छा ड्राइंग करते हुए, आप अपने डांसिंग का, सिंगिंग, जिसमें एक हॉबी में हमेशा फोकस रहो और उस हॉबी को करते जाओ, उसके लिए भी टाइम निकालो। अब आप देखो कि आपके पास रोज़ इतना कुछ है करने के लिए कि आप अपने फ्रेंड्स से, और आप उस ग्रुप में जाओगे ही नहीं जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव माइंड बच्चे हैं, या क्योंकि आपके पास आपका कोर्स है कंप्लीट करने, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल अभी मैंने नहीं बताया, पर एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो, न्यूज़पेपर एडिटोरियल। तो आपको शुरू में तो ऐसे ही पढ़ो, ब्लैक एंड वाइट समझ के पढ़ो कि ठीक है, नेम सेक के लिए पढ़ो, से ओनली सेक फॉर रीडिंग पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो धीरे धीरे आपको वो भी पढ़ना है। फिर आपको अपनी कोई हॉबी है तो वो भी आधा घंटा उसके लिए भी कभी कभार निकालना है, वीक में 2 बार 3 बार तो आपको वो काम भी करना है। उसके अलावा लास्ट में रोज़ एक पैराग्राफ मैनुअल राइटिंग, एक डायरी लो, और दिन भर क्या किया उसको बिल्कुल शॉर्ट में, कि आपने क्या पॉजिटिव किया, 2-3 सेंटेंसेस उसके, और आज आपका क्या आपके मन में रह गया या आप नहीं कर पाए, 1-2 सेंटेंस उसके। कोई पर्सनल बात नहीं लिखना है, बस इतना अपनी एक डायरी में लिखो।
इतना अगर आप करते हो तो देखो कि योर पर्सनालिटी विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी पर्सनालिटी किससे चेक होती है पता आप? नॉट मनी, मसल, पावर, किसी से नहीं। मनी आपके पास है, मसल मतलब आप बड़े स्मार्ट, हैंडसम, पावरफुल हो, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है आपके पापा की सोसाइटी में, आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सबसे ज़्यादा रिएक्शन से फ़र्क पड़ता है। आप कैसा रिएक्ट करते हो, आप कैसा सोचते हो, वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पॉन्ड करेगी। तो अगर आप जितना ज़्यादा बिजी और इस तरह से नॉलेजेबल रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी कंसिस्टेंट होगी। आप कभी भी गॉसिपिंग में, बैक बाइटिंग में इंडल्ज होना ही नहीं चाहोगे। आप पूरे टाइम फोकस्ड रहोगे, बड़े कंसिस्टेंट। अब बाद में कभी हुआ, अभी बड़े हो जाओ थोड़े और, तो फिर कोई एनजीओ ज्वाइन कर लेना, तो फिर आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आप संडेज़ आप एनजीओ जाते हो, वहाँ सर्विसेज देते हो, आपको क्या आता है आप लोगों को सिखा के आओ। जो अंडरडॉग स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, अनप्रिविलेज बच्चे हैं, उनको कुछ सिखा कर आओ। ये बाद में करना, अभी तो आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करो। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हो तो देखना आप कि आप वैसी वाली पर्सनालिटी कभी नहीं बनोगे जो गॉसिपिंग में है या बैक बाइटिंग करते हैं या आस है ना सिर्फ मोबाइल और इसमें और गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप वो नहीं करोगे। तो मैं लास्ट में ये कहूँगी, अभी आप अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो या कॉलेज गोइंग हो तो आप अपना टाइम एंजॉय ज़रूर करो। ये लाइफ कभी नहीं आएगी। लेकिन इन सब के साथ जो सजेशंस मैंने दिए, लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगी, एक रीकैप है कि सबसे पहले तो मॉर्निंग में हमारे पास एजेंडा होना चाहिए, कुछ भी डिवाइन एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप भजन सुनो, कुछ भी करो, इस तरह से सवेरे पूजा करो, इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत हो। देन यू हैव टू गो फॉर योर योगा और meditation, just for 20 minutes, 15 minutes. If you are not able to spend much time, at least 10 to 15 minutes, right? For pranayam, for yoga, or for walk, whatever. One of the things you can do, go for it. Then अच्छा, ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा आउटसाइड नहीं, प्रेफर होम फूड, प्रेफर होम प्रिपरेशन, जो घर में बनता है इंडियन फूड, उसको प्रेफर करो। तो आप अच्छे से खाना खाओ और उसके बाद फिर आप अपना कोर्स, शाम को सवेरे जब बैठ सकते हो, आधा एक घंटे अपना कोर्स से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो देखो और उसके नोट्स बनाओ। जितना लिखोगे उतना आप अपने दिमाग को लिखवा रहे हो, ये पक्की बात है, ये मेरा स्टेटमेंट समझ लो। राइटिंग बहुत हेल्प करेगी आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने में। और उसके बाद और टू डू की एक लिस्ट बना लो कि आज मुझे क्या क्या करना है। फिर शाम को खाना वाना खाते समय न्यूज़पेपर तो आप पढ़ चुके हो सवेरे, तो न्यूज़ चैनल देखो, एक आधी अच्छा न्यूज़ देखो कि क्या चल रहा है। इंग्लिश में भी सुनने की कोशिश करो, कोई नया वर्ड, कोई नया सेंटेंस आपको समझ में आता है तो उसको लिखो और इस तरह से करो। और 2-3 दिन में एक बार अपनी हॉबी इनकलकेट करो और देखो फिर आपकी पर्सनालिटी, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। सो ऑल द बेस्ट and I would like to listen you. My number is 9425349521. You are most welcome. You can ask any question, right? Thank you so much. God bless you.